है, एमसीक्यू करते हैं फटाफट। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटी, अरे भैया, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटी इज द आउटसाइड द स्कोप ऑफ सप्लाई एंड हेंस नो सप्लाई? Services by an employee to the employer in the course of or in relation to his employment, services of funeral, actionable claims other than lottery betting and gambling, all of the above। क्या आंसर है? सारे लोग जवाब दें और फटाफट। डी करेक्ट। Which of the following activity is outside the scope of supply and hence no supply? Services provided through a constitutional post, sale of land, subject to Schedule 2(5)(b) of sale of building, all of the above। D ये आएगा। Question 3, services by any court or tribunal established under any law for the time being force is supply of goods, neither as supply of goods nor supply of services, supply of services, either as supply of goods or as supply of services। बताइए। B आएगा करेक्ट। The duties performed by any person who holds any post in pursuance of the provision of the Constitution in that capacity is supply of goods, neither supply of goods nor supply। बताइए इसमें क्या आएगा? B. The duties performed by any person as a chairperson or a member or a director in a body established by the central government or a state government or local authority and who is not deemed as an employee before the commencement of CGST Act 2017 is, वाली लाइन लिखी हुई थी, ये वाली लाइन। तो neither a supply of goods, activity of funeral, burial, crematorium or mortuary including transportation of deceased, बताइए। ये हम लोग चैप्टर के ठीक बाद में कर रहे हैं, तो इसलिए ऑब्वियसली आपको याद होना चाहिए और एग्जाम में आप भूले नहीं। एक्शनेबल क्लेम्स अदर देन लॉटरी, बेटिंग एंड गैम्बलिंग, सेम। सर्विसेज बाय एन एम्प्लॉय टू द एम्प्लॉयर इन द कोर्स ऑफ और इन रिलेशन टू द एम्प्लॉयमेंट इज, डायरेक्ट क्वेश्चन है सारा। सर्विसेज बाय एनी कोर्ट और ट्रिब्यूनल एस्टैब्लिश, ये दोबारा कैसे आ गया, इसको काटना होगा, ये भी शायद दोबारा ही आया है। अच्छा, ये दो बार कॉपी पेस्ट हो गया क्या? हाँ, यहाँ ठीक है। Examine the following statements in the light that services by an employee to the employer in the course of a relation to employment is not treated as supply. Compensation paid to employee for termination of employment is a supply. Compensation paid to employee so that he do not join any other competitive business for 10 years is not a supply। जो हमारा ओपिनियन उसके अकॉर्डिंग करते हैं, डिपार्टमेंट का ओपिनियन हम लोग बाद में करेंगे। कंपनसेशन पेड टू एम्प्लॉय फॉर टर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट इज ए सप्लाई, नो इट इज नॉट ए ट्रीटेड एज सप्लाई। कंपनसेशन पेड टू एम्प्लॉय सो दैट ही डू नॉट जॉइन एनी अदर कॉम्पिटिटिव बिजनेस फॉर 10 years इज नॉट ए सप्लाई, यस इट इज ए सप्लाई। तो आंसर विल बी फॉल्स, ट्रू। एग्जामिन द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, ठीक है। फीस पेड टू कंज्यूमर डिस्प्यूट्स रिड्रेसल कमीशन इज ए सप्लाई, फीस पेड टू आर्बिट्रेटर इज ए सप्लाई। बताइए यहां पर क्या ये सप्लाई है, यस और नो? नो, फॉल्स, दिस इज ट्रू, तो आंसर विल बी फॉल्स एंड ट्रू। क्वेश्चन 13, एग्जामिन द फॉलोइंग स्टेटमेंट, लॉटरी टिकट इज ए गुड्स, सेल ऑफ लॉटरी टिकट इज नॉट ट्रीटेड एज सप्लाई सिंस इट इज एन एक्शनेबल क्लेम। बताइए लॉटरी टिकट इज ए गुड्स, ट्रू और फॉल्स? ट्रू। सप्लाई, फॉल्स, तो आंसर विल बी दिस वन। Activities or transactions undertaken by the central government, state government, local authority in which they are engaged as public authorities, as may be notified by the government on the recommendation of the council, shall be treated as neither a supply of goods nor supply of services। Services provided by SEBI is a supply. Services provided by government as public authority is not a supply. Services provided by government as a commercial unit is supply। बताइए, सबसे पहले ये बताइए, सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय सेबी इज ए सप्लाई, फीस लेती है? यस। तो सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय सेबी
फीसें फीस तो लेती है लेकिन इट इज नॉट ट्रीटेड एज सप्लाई, तो फॉल्स है। कंस्टिट्यूशनल पोस्ट है सेबी। सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट इज एज ए पब्लिक अथॉरिटी इज नॉट ए सप्लाई, ट्रू। सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट एज ए कमर्शियल यूनिट इज ए सप्लाई, ट्रू और फॉल्स? ट्रू, फॉल्स, ट्रू, ट्रू, दिस इज आंसर। और कमर्शियल यूनिट का मतलब पोस्ट ऑफिस चलाना, एयरलाइन चलाना, ये सब क्या है? कमर्शियल बिजनेस है। ट्रांजेक्शंस अंडरटेकन बाय गवर्नमेंट ओन्ड कंपनी इज ए सप्लाई, ट्रू और फॉल्स? ट्रू, क्योंकि गवर्नमेंट ओन्ड कंपनी है, तो कंपनी अगर कोई सप्लाई कर रही है तो सप्लाई है। सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय लोकल अथॉरिटी एज ए सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय लोकल एज ए पब्लिक अथॉरिटी इज नॉट ए सप्लाई, ट्रू, बोथ ट्रू। चलिए ये हो गया। अब हम लोग कल मिलते हैं, और हमने बहुत बड़ी जर्नी कंप्लीट कर ली है, क्योंकि हम लोग अब लेवाई तक पहुंच गए, लेवाई तक। तो क्लास मुझे बहुत डिटेल है, आपको लग ही रहा होगा, क्योंकि हमने एक एक वर्ड, एक एक लाइन पढ़ रहे हैं। प्रेस रिलीज, एफएक्यू भी डिस्कस कर रहे हैं आपके साथ, लॉ तो डिस्कस कर रहे हैं, रूल्स ये सब भी डिस्कस कर रहे हैं, तो कुछ छोड़ नहीं रहे, कुछ भी नहीं छोड़ रहे। तो अब करते हैं नेक्स्ट चैप्टर, और मुझे लगता है अगर 17th क्लास है, परचेजिंग एजेंट और सेलिंग एजेंट में कोई फर्क तो है नहीं, इसलिए जब सेलिंग एजेंट हो गया तो परचेजिंग एजेंट भी हो गया। वैसे अगर आपको कोई डाउट है तो आप पूछिए। तो 34 आवर्स, ऑलमोस्ट 34 आवर्स क्लासेस वी हैव डन। तो लेकिन अभी बहुत है, मुझे लग रहा है कि ये करीब करीब 120 आवर्स के आसपास क्लासेस लगेंगे, उससे कम तो बिल्कुल नहीं। तो लेवाई एंड कलेक्शन कल करते हैं इसको। अब जर्नी बहुत आसान है, अब जर्नी बहुत आसान है, क्योंकि ये लेवाई तक पहुंचने में ही हमें टाइम लगता है, बाकी तो बहुत आसान है। बाकी रिटर्न फाइल करना, इनवॉइस जनरेट करना, ये सारा मैकेनिकल है, मैकेनिकल है, तो बहुत ज्यादा इसमें अंडरस्टैंडिंग की जरूरत नहीं होती है, तो अंडरस्टैंडिंग क्या, याद करने की ज्यादा जरूरत होती है। ठीक है, सो थैंक यू सो मच, बाय बाय।